Hi, welcome to Concept Arena. In this video we'll discuss about gilt funds. Okay, so क्या gilt funds क्या होते हैं, इसके रिटर्न्स कैसे हैं, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ओके जहाँ पे एज यू नो द क्रैश विच केम ऑन 24th March, द बॉटम ऑफ द मार्केट दैट मेड ऑन 24th March. आफ्टर दैट बहुत लोगों के जो पोर्टफोलियोज दे आर अराउंड -10 और -20, -30, इवन -40% तक डिक्रीज़ हो गए थे. ओके सो ऐसे टाइम पे द गिल्ड फंड्स दे आर गिविंग अबाउट 10 to 15%, एंड some guild funds are also giving 16 to 17% of return. Okay, so how is that possible, and क्या अभी इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या वी शुड वेट, एंड कौन इन्वेस्ट कर सकता है. ओके किसके लिए बेनिफिशियल रहेगा. सो विल डिस्कस ऑल दिस इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट with the discussion. Okay, so first of all, what are guild funds and how they are safe and how they perform, or how the mechanism works. Okay, all this we will discuss one by one. So first of all, guild funds. So where do they invest? They invest into what? They invest into the government securities, GSECs. Okay, government securities. सो अराउंड 90% और मोर ये लोग किस में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में. सो देयरफॉर ऑल्सो दे गिव व्हाट, अ फिक्स्ड इंटरेस्ट. ओके, एंड दे आर द सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बिकॉज व्हाट, दे आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑल्सो देयर आर सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विच आर ऑल्सो बैक्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स. ओके, so they are the very safe investment. There is a very low risk of default. So these are the gilt funds. Also before understanding the gilt funds, you should also understand the mechanism of gilt funds. Okay, how they are exposed to the interest rate risk. So before moving to that, we will discuss about the returns which we have seen in the last 1 to 3 years. Okay, so these are the returns. As you can see, IDFC government securities bond, securities fund. Okay, it has given in last 1 year 13.05%, in 2 year 15.1%. okay, 10 year return is 10.06, 12.35, 14%, 10%, 11%, 11, 10.6. Aditya Birla, L&T, LIC, UTI, HDFC Guild Fund 10%, 9.8, 9.52, 9.36. These are the 1 year return, and these are the 2 year returns. So here you can see all the 1 year and 2 year returns are in positive and also a good return. Okay, ऐसा नहीं है कि 6% 5%, a good return above 9-10%. So these are the good funds. Now we'll understand how is this possible when all the equity funds are performing at minus, how they are performing at a such good rate and giving a good return. Okay, so we'll have to first understand the bond concept. Okay, because ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है. ठीक है, so we'll understand the bond and the interest rate. So there is a very famous relationship which every finance student know, or he also studies. That is, when the interest rate falls, okay, when the interest rate falls, the bond prices rises, and when the bond prices go down, the interest rate goes up. Okay, so how is possible, how this statement or the relationship comes into the effect. Okay, we'll understand that. सो क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. से देयर इज़ अ बॉन्ड. ओके, से गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी. 10 ईयर इज़ व्हाट, 10 ईयर मेच्योरिटी विथ कूपन इंटरेस्ट. से कूपन इंटरेस्ट ऑफ व्हाट, 7%. 7% का इसका कूपन इंटरेस्ट है, और इसका प्राइस है 100 रुपीज़. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट, बॉन्ड. and interest rate
से देर इज़ इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, ठीक है, 6% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है और बॉन्ड का करंट कूपन रेट है 7% और उसका प्राइस है 100 रुपीज़। अब क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ करता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ करता है 2 से 4% और 5%, ठीक है। तो अब इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर क्या करेगा, यहाँ पे तो 5% है, ही विल डेफिनेटली गो टू बॉन्ड वेयर ही इज़ गेटिंग अ फिक्स्ड दिस कूपन इंटरेस्ट, कूपन रेट ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, ये फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज़ ऑफ 7%। तो 7% का इसको क्या मिलेगा, फिक्स्ड रिटर्न इंटरेस्ट मिलेगा। सो डेफिनेटली ही विल गो टू व्हाट, बॉन्ड, ही विल परचेज द बॉन्ड बिकॉज ही इज़ गेटिंग अ फिक्स्ड कूपन रेट ऑफ 7% और मार्केट में कितना मिल रहा है, 5%। सो डेफिनेटली ही विल बाई व्हाट, अ बॉन्ड। सो इसका प्राइस 100 चल रहा था, जैसे ही इस जो इंटरेस्ट रेट गिरा सो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि सब रश, everyone will rush to buy the bonds, hence the demand and the prices, hence the prices goes up. ओके, अब इसी 100 रुपये के लिए ही इज़ रेडी टू गिव व्हाट, 110, 105 वॉट एवर में भी, ठीक है, एज़ पर डिमांड एंड सप्लाई 110, 105 रुपये इसकी बॉन्ड की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इन द सिमिलर वे वाइस वर्सा, व्हेन द आरबीआई इंक्रीजेज द इंटरेस्ट रेट से 8%, अब क्या हो गया, ये इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा, क्योंकि आपको 8% तो मार्केट में मिल रहा है और ये बॉन्ड कितना दे रहा है, 7% दे रहा है। सो डेफिनेटली इसका क्या हो जाएगा, प्राइस नीचे आ जाएगा, 90 और 95 समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दिस इज़ द रिलेशनशिप, वेन एवर द इंटरेस्ट रेट गोज़ डाउन द बॉन्ड प्राइजेस गोज़ अप, एंड वेन एवर द इंटरेस्ट रेट गोज़ डाउन, sorry, interest rate whenever goes up the bond prices goes down. Okay, so this is the concept. Now we'll understand how these affect our fund. Okay, fund को कैसे affect करता है ये। अब fund में क्या है, पूरे के पूरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, मोर देन 90%, ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, सो डेफिनेटली इफेक्ट तो करेगा, फाइन। सो विल सी दैट हाउ दिस इज अफेक्टिंग आवर बॉन्ड, आवर फंड्स NAV. Okay, so whenever the interest rate decreases the bond prices increases. Okay, so bond price increase होगा तो अपने फंड्स में क्या है, जो फंड्स का पोर्टफोलियो है, ठीक है ना, ये फंड का पोर्टफोलियो, इसमें सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। सो जैसे इंटरेस्ट रेट गिरा, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ा तो अपने बॉन्ड जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड प्राइजेस बढ़ गए। सो जैसे ही पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ी, अपना NAV क्या हो गया, NAV भी इंक्रीज़ हो गया, एंड वाइस वर्सा, वेन एवर इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज द प्राइस, बॉन्ड प्राइजेज डिक्रीजेज, बॉन्ड प्राइजेस डिक्रीज़ होगा तो पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है, इसमें पूरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उनकी प्राइजेस भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। सो अल्टीमेटली क्या होगा, NAV भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई द NAV increase or decrease in the gilt funds. Okay, also there are other reasons, but major जो रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि ये पिछले जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो कैसे चेंज हुए थे, ठीक है। अभी करेंटली जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, करेंटली इज़ द 4% रेपो रेट, 4% रेपो रेट अभी चल रहा है, ओके। सो सबसे लोवेस्ट जो था दैट वाज अराउंड 2009 विच वाज 4.75%, ओके। सो दिस वाज 4.75%, 4.75% कब था ये, 2009 में, 2009 में 4.75% था, ठीक है। सो हियर यू कैन सी 6 फरवरी 2020, अभी इसी साल 5.15% था, एंड ड्रास्टिकली इट हैज़ गॉन डाउन टू 4%। सो डेफिनेटली क्या होगा, गिल्ड फंड्स के रिटर्न बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि बॉन्ड प्राइस क्या हो जाएगा, बॉन्ड प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इंटरेस्ट रेट गिरा है, सो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे, एंड हियर यू कैन सी वही हुआ है, ठीक है। सी 13.05%, 15.1%, सो इंटरेस्ट रेट गिरा है और ये
इनके प्राइजेस बढ़े हैं और रिटर्न NAV जो है बढ़ा है, तो ऑब्वियसली जो फंड का रिटर्न है बहुत अच्छा आया है। ओके, also here you can see the net inflow. This is a source of this image is from Amphi. I have taken this image from Amphi website. Okay, so here you can see the net inflow into the guild funds in rupees crores. This is around 2500. Okay, so in April 2020 the inflow, this is huge. Okay, this is huge. Around 2500 crores have been come into the guild funds. The reason is simple, the RBI has reduced the interest rates. Okay, और इंटरेस्ट रेट कब कम हुआ था? ऑल्सो इन मे. ओके, इन मे ऑल्सो द अराउंड 75 बेसिस पॉइंट RBI ने कम किया था. सो जो मार्च अप्रैल में इन्वेस्टर्स आ गए, दे हैव एंजॉयड द रिटर्न. So at the end I would like to say, so what conclusion we draw from this discussion? First, अभी इन्वेस्ट करना क्या सही रहेगा? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज रीज़न इज सिंपल, इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लो. ठीक है, और अभी अगर इन्वेस्ट करते हैं और ये अगर इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली, अब तो इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, बॉन्ड प्राइसेस गिरेंगे, एंड फ्रॉम नाउ इफ़ यू इन्वेस्ट यू विल सी अ नेगेटिव रिटर्न और वेरी लेस रिटर्न यू विल अर्न. ओके, सो अभी इन्वेस्ट करना नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. ओके, सेकेंड थिंग, इफ़ योर होराइजन इज़ 7 years and plus, then you can invest. Yes, then you can obviously invest, because over a period of time it will give a good return. Okay, better than FD, of course, better than FD. So yeah, you may definitely go, but not a very huge or mind-blowing returns like equities of 15, 16, 17%. No, that you cannot expect that much of return in a long term from guild fund, unless and until there is this like this time the interest rate have fallen. अगर वैसा कुछ होता है तभी आपको अच्छा इंटरेस्ट रिटर्न मिल सकता है. ठीक है, ओके, सो दिस इज़ माई व्यू whether you should invest or not. Okay, also before investing consult your financial advisor, and this is not any investment advice for you, so consult your financial advisor. So this is the end of the video. Thank you so much.